renewable energy like solar and wind grows across the world. We all are having an idea. We all are having this kind of solutions. Government policies, regulatory, they all were pushing. In India right now, a panel can generate maximum of approx 4.5 hours in a day. Hello, everyone, and welcome to the podcast. Today, we are going to talk about a technology that is becoming extremely important for the future of clean energy. That is BESS, battery energy storage systems. As renewable energy like solar and wind grows across the world, the biggest challenge is how to store energy and use it when demand increases. Countries like US, India, and China are investing heavily in energy storage infrastructures to support renewable energy adoption. To help us understand this topic better, we have a guest today, Rahul Srivastav, a senior product manager, and he brings a strong experience in energy technologies. Rahul, welcome to the podcast. Thank you, Abhishek. Thank you for having me. So let's begin with the basics. Rahul, what exactly is BESS, and could you explain the different types of energy storage in very simple layman terms? Yeah, sure, Abhishek. So, before we start with the podcast, I just wanted to, you know, tell to all my viewers that today's podcast which we are having, so मेरे जो भी answers होंगे, that will be, for a very basic. I'm not including all the, highly technical terminologies जिसमें आपको confusion हो. So I'll try to be as basic as possible, right? So your first question is, what is BESS, right? So BESS is a battery energy storage solution. अगर आप देखेंगे, see, this is a concept, right? इस concept पे we all are having an idea. We all are having this kind of solutions at our home, at our offices, and we are, familiar with this kind of concept. अगर आप घर की बात करेंगे, you have batteries, you have UPS. अगर ऑफिसेस की बात करेंगे, you have UPS plus you have a set of VRA technologies. Right? So ये सारे भी is a kind of ESS. It's a energy storage solution. जिसमें क्या होता है, जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज बैटरी जो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको चार्ज करते हैं, और दूसरा होता है चार्जर जो आपके एसी इनपुट को लेकर के डीसी में कन्वर्ट करते हैं, और जब रिक्वायर्ड होती है उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं. दैट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? अब जो BESS की बात हो रही है, BESS, बैटरी एनर्जी, इसमें क्या होता है कि इट्स, जब हम पहले बात करते थे वो हम बात करते थे एट किलोवाट स्केल. एक टर्मिनोलॉजी होती है, अगर आपके घर के लोड्स होते हैं, दैट वी टॉक अबाउट अ किलोवाट केवीए, राइट? सो वो होता था, हम किलोवाट स्केल की बात करते थे, जो हम घर की बात कर रहे हैं, ऑफिस की बात कर रहे हैं. बट अभी क्या हो रहा है, दिस टेक्नोलॉजी इज बूमिंग. वाई? अब हम बात करते हैं मेगावाट आर्ट स्केल, हम बात करते हैं गीगावाट स्केल. वाई? बिकॉज ऑफ द सोलर एंड विंड. रीज़न क्या है कि if I talk about 2000, there was no much concept about this solar, this wind and all, right? But in 2008, what we have seen is solar was coming in India in a big way. Government policies, regulatory, they all were pushing to have solar because उसमें हमें benefits दिख रहे थे. Why? Because during the daytime you have that energy, solar energy, जिसको आप use करके you can cater your load, right? Why to depend on those thermal? Why to depend on coal? आपको ही पता है coal पे इतने challenges हैं, it's a carbon emission and all. Why to destroy your environment? इसलिए गवर्नमेंट का पुश आया to go for solar, to go for wind. अब क्या हुआ, 2009-10 a lot of tenders are there, ठीक है? गवर्नमेंट, प्राइवेट, घरों पे भी आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ सोलर इंस्टॉलेशन. 2017-18 तक आते आते यू हैव सीन दैट कि अभी जो है ये थोड़ा सा स्टेबल हो गया. नाउ व्हाट मीन्स, अब क्वेश्चन आता है कि एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, सोलर एंड विंड एनर्जी आर इंटरमीडिएट, बिकॉज मीन्स दे आर इरेगुलर इन द सेंस कि वो आपको डे और नाइट, या अगर मैं सोलर की बात करूँ, डे नाइट हर समय आपको जनरेट करके नहीं देगा. अगर विंड की बात करूँ तो 24 आवर्स जनरेट करके नहीं देगा. सोलर के साथ क्या है कि देयर इज लिमिटेशन. जब सोलर एनर्जी रहेगी तभी, जब सोलर रहेगा तभी वो कन्वर्ट करेगा.
विंड के साथ क्या है, विंड कॉन्सेप्ट क्या है कि विंड है तभी करेंगे। तो अब यहाँ पे आता है बेस का कॉन्सेप्ट, क्योंकि यू नो सोलर जो इंस्टॉलेशन होते हैं वो मेगावाट और गीगावाट स्केल में होते हैं। अब उन एनर्जीज को, बिकॉज वी हैव सरप्लस पावर फ्रॉम द सोलर, फ्रॉम द इंस्टॉलेशन, वट एवर वी हैव दैट काइंड ऑफ सरप्लस पावर जिसको हम स्टोर कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम, मीन्स ड्यूरिंग द नॉन पीक आवर्स, ड्यूरिंग द नाइट टाइम आप उसको यूज कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। जो हम पहले करते थे, हमारे घरों में क्या होता था कि जब हमारी लाइट आती थी, वी यूज्ड टू चार्ज अवर बैटरीज। जब लाइट कट ऑफ होती थी, देन वी यूज्ड टू डिस्चार्ज इट। सेम कॉन्सेप्ट। बट अभी क्या हो रहा है, सोलर के साथ भी यही कॉन्सेप्ट है, विंड के साथ भी यही कॉन्सेप्ट है। So that is why we are talking about this BESS in a big way, मेगावाट, गीगावाट, क्योंकि हमारे सोलर इंस्टॉलेशन और विंड इंस्टॉलेशन वो गीगावाट स्केल में ऑलरेडी हो चुके हैं इंडिया में। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में ऑलमोस्ट एज ऑन डेट 135-150 गीगावाट आवर का सोलर इंस्टॉलेशन हो चुका है। विंड की बात करो तो अप्रॉक्स 40 गीगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब उसको इंटीग्रेट करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए, उसके सरप्लस पावर को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए आपको, दैट इज बेस। दैट इज वाई वी कॉल इट इज अ बेस। ये एक बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट की बात करूँ, एनर्जी स्टोरेज में मेजरली जो इंडिया में दो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बात हो रही है। वन इज द पम्प, पीएसपी जिसको बोलते हैं, दैट इज अ पम्प स्टोरेज। सेकेंड वन इज द बैटरी। अब हम अभी क्या है, बैटरी पे बात करेंगे। वाई पीएसपी इज सम डिफरेंट टेक्नोलॉजी, सम डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अगर मैं बेस्ट की बात करूँ तो बेस्ट में जो है, यू नो, द कोर कंपोनेंट ऑफ दिस बेस्ट इज बैटरी। अब बैटरी में क्या है कि बैटरी जो टेक्नोलॉजी होती है, आपको ही पता है, अगर 10 साल पहले की बात करूं तो जो इंडिया में टेक्नोलॉजी थी दैट वाज लेड एसिड टेक्नोलॉजी, जो हमारे घरों में या ऑफिसेस में यूज होते हैं। बट उसके साथ क्या रिस्ट्रिक्शन था या लिमिटेशन था कि वो स्पेस बहुत देता था, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। आपकी कारों की बैटरीज देख रहे हैं, 2 ईयर्स 3 ईयर्स आपको रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ता, विच इज़ अ कॉस्ट फॉर अ यूज़र, राइट। बट सीइंग दोज रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस, अभी क्या हुआ है कि बैटरी में बड़ी सारी टेक्नोलॉजी की बात होती है। तो अभी जो इंडिया में व्हाट वी हैव सीन इन पास्ट 5-6 ईयर्स, अभी लिथियम आयन करके एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो वाइडली अडॉप्ट हो चुकी है, नॉट इन इंडिया, ग्लोबली वाइडली अडॉप्ट हो चुकी है, विच इज गिविंग अ बेटर ROI। मीन्स आप देखेंगे जो आपका एक्सपेंस है बैटरी पे, जो आप 3 साल में आप रिप्लेसमेंट पे जाना पड़ता था, वो इमीडिएटली आपको 5 से 6 साल में कन्वर्ट कर रहा है फॉर दिस EV एप्लीकेशंस, राइट। अगर आप होम एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो उससे ज़्यादा टाइम दे रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, विद द सेम प्राइस आपको बेटर लाइफ मिल रही है, स्पेस कम ले रहा है। तो इसलिए बैटरी टेक्नोलॉजी की बात करें, बस की बात करें, तो लिथियम आयन इज डोमिनेटिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट राइट नाउ इन इंडिया, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर बात करूँ तो मैं बैटरी की, तो क्योंकि डिफरेंट टेक्नोलॉजी में बात करें तो एक लिथियम आयन हो गई, दूसरी हो गई वेनेडियम हो गई, वेनेडियम की और अच्छी लाइफ। तीसरी बात करें तो आपकी जो सोडियम आयन की बात हो रही है, सोडियम आयन की भी, लेकिन हर टेक्नोलॉजी से कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, विद रिस्पेक्ट टू यू नो जो उसकी जो कॉन्सेप्ट अभी की स्टेज पे है। बट लिथियम आयन इज समथिंग जो बहुत मैच्योर हो चुका है आज की डेट में, विच इज़ अ प्रूवन इन इंडिया और ग्लोबली, विच इज़ अ प्रूवन टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज हाउ वी आर मूविंग टुवर्ड दिस बेस्ट एज अ होल। ग्रेट राहुल। आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन अपने आप में काफ़ी बेसिक्स क्लियर कर देता है। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बेस्ट, लेट्स टॉक अबाउट द ग्रिड इटसेल्फ। So how does this battery storage system actually work in a power grid? Okay. See, if we have to talk about this concept, then very simple. That right now India is totally dependent on the thermal, right? Means thermal and there's hydropower, right? Hydro, we have limitations. We don't have much dam which can cater India's requirement. Yes, so we move towards thermal. Thermal have a lot of problem with respect to the carbon emission. The environment, how we are handling it. There are a lot of technologies and a lot of forums are there who are working day in and day out to make this, impact this, to reduce the carbon emission. So we have to make our dependency. We have to reduce our dependency from this, coal thermal management items. So simply, thermal में क्या है? Thermally में what we are doing? Very simple concept. We are using coal and we are means heating it. जो स्टीम निकलता है उससे हम टरबाइन जनरेट करते हैं, टरबाइन रोटेट करते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। और बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, अभिषेक, मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, ठीक।
इसमें भी क्या है कि भाई जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वी हैव सोलर इंस्टॉलेशन ऑफ 135 गीगावाट। द प्रॉब्लम विद दिस इज कि in India right now a solar panel can generate maximum of approx 4.5 hours in a day. Okay, that is a limitation of the demography of India and all. A few regions have some higher end, few regions have lower end, but like Rajasthan and Gujarat wherein you can generate some more energy, right? So वहाँ पे क्या होता है कि during the day time suppose you have for the Gujarat region your load requirement is approx 100 megawatt for example, right? But you have space wherein you can install 200 megawatt hour of solar plant. So what you will do during the daytime 100 megawatt can be catered to your load, right? But what about this surplus 100 megawatt? So this was a loss earlier before this BESS concept came into the picture. This was a loss, right? What we are doing right now, this surplus power 100 we are storing in our BESS, in our battery energy storage solution, right? And during the night time what we are discharging and catering our load. That means with same plant and with same space what we are doing, we are catering our load as well as during the night time we are using this BESS. So this is giving a very best concept which is helping our user, which is helping government of India to reduce the dependency from the thermal plant during the night and during the day. So this is how it works. Similarly for the wind also. When there is a good intensity of wind available and during those times, if there is some surplus power that we can calculate, if there is some surplus power we can consume or we can store those powers in our BESS, and during the not peak hour or when there is no generation is available, we can use that BESS part. So this is as simple as that. Okay. So, Rahul, since you are also coming from engineering background, so am I. तो इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ अ बेस्ट प्रोजेक्ट दैट अ पर्टिकुलर इंजीनियर शुड अंडरस्टैंड? Okay. See, we did engineering, right? जब I'm an electric engineer. ठीक है. We have read when we were doing engineering, we have gone through a lot of subjects like power system, like electric engineering book. वो अभी रिलेट कर पाएंगे लोग जो भी वो इज अ स्टूडेंट और वो इज अ फ्रेशर, दे कैन रिलेट इट, ठीक है. बट द थिंग इज अभी क्या है कि जो बेस्ट के लिए जो मेजर कॉन्सेप्ट है दैट इज रिक्वायर्ड. पहला तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर सिस्टम, मीन्स हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटिंग, what's the kind of generation, what's the kind of transmission and what's the kind of distribution is happening in India. ठीक है. अब जनरेशन के अलग कॉन्सेप्ट है. जनरेशन में थर्मल भी आता है, जनरेशन में हाइड्रो भी आता है, जनरेशन में सोलर भी आता है, जनरेशन में विंड भी आता है, राइट. ट्रांसमिशन के अलग कॉन्सेप्ट है और ट्रांसमिशन में एसी ट्रांसमिशन भी होते हैं, डीसी ट्रांसमिशन भी होते हैं, राइट. और डिस्ट्रीब्यूशन तो आपका ऑल टुगेदर एक डिफरेंट किया है, ठीक. तो अब इसमें आपने देखना है कि बेस, अगर मैं बेस की बात करूँ तो एक तो पावर सिस्टम आपने पढ़ के रखना है, ठीक है. अब बेस की मैं बात करूँ तो जब हम लोग पढ़ते थे उस समय देयर वाज नो मच emphasis or focus on this best battery technologies and all. We were never aware कि हाँ भाई साहब ये भी एक फ्यूचर में इतना बूम आ सकता है, there is a market wherein आप जो है एक अच्छा फ्यूचर देख सकते हैं. उस समय क्या था कि ट्रांसमिशन एंड सब स्टेशन एंड जनरेशन, यही 3-4 कॉन्सेप्ट होते. अब मैं बेस की बात करूँ तो बेस में क्या है, आपने पहली चीज़ तो ये देखनी है कि व्हाट इज़ द बैटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है. बैटरी टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी मेजर रोल, ठीक है. तो मैं अगर बेस्ट की बात करूँ तो बेस्ट सॉल्यूशन में जैसे मैंने इनिशियली बताया था, एक होती है बैटरी, दूसरा होता है चार्जर, ठीक है, जो मेजर जो काम करते हैं, ठीक है. तो बैटरी में आपको सेल्स टेक्नोलॉजी के बारे में पता, ठीक है, मीन्स कितने सारी टेक्नोलॉजीज है. VRLA टेक्नोलॉजी विच वी कॉल एज ए वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी. सेकेंड वन इज द लिथियम आयन टेक्नोलॉजी. देन थर्ड वन इज अ रेडॉक्स फ्लो, सोडियम आयन, राइट. एंड देन अगेन फ्यू मोर टेक्नोलॉजीज आर देयर जिस पे काम चल रहा है, ठीक है. आपको एक टेक्नोलॉजी से तो इन बेस्ट में अगर देखो तो वन इज बैटरी, सेकेंड वन इज PCS. PCS इज अ पावर कन्वर्जन सिस्टम विच इज अ बाई डायरेक्शनल इन्वर्टर. वो क्या करता है, आपके AC को DC में कन्वर्ट करता है एंड ड्यूरिंग द बैकअप पार्ट्स इट विल कन्वर्ट योर DC टू AC. दैट इज वन थिंग. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट इज द थर्मल मैनेजमेंट. हम जो VRLA है उसके ऑलमोस्ट 1/4 पे लिथियम आयन इंस्टॉल कर लेते हैं. वाई? बिकॉज हम कम स्पेस में लिथियम आयन में इन लेसर स्पेस इन स्मॉलर फुटप्रिंट हम ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी स्टोर कर सकते हैं.
जो वीआरएल में नहीं कर सकते, राइट? तो जब आप किसी सेल्स में ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी स्टोर करते हैं तो यू रिक्वायर अ बेटर थर्मल मैनेजमेंट विच कैन हेल्प टू मेंटेन द कूलिंग, बिकॉज अगर आपने थर्मल मैनेजमेंट नहीं किया तो यू हैव टू फेस ऑल दोज फायर रिलेटेड इश्यूज जो ईवीज में देखा है, जो हमने बेस में देखा है, जो होते हैं, ठीक है? बिकॉज ऑफ it's not a problem of a cell, it's not a problem of PCS, it's a problem of a thermal management, how thermally we are managing it, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ सम लिमिटेशंस भी आते हैं। तो लिथियम आयन के साथ यही लिमिटेशंस है कि आपको इफ यू आर गेटिंग दैट सेल्स एट अ हायर एनर्जी डेंसिटी तो आपको थर्मली यू हैव टू मैनेज इट, ठीक है? उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है? लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजीज देयर, एयर कूलिंग टेक्नोलॉजीज देयर, और भी सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स। अगर मैं बेस्ट की बात करूँ तो फर्स्ट इज बैटरी, सेकेंड वन इज PCS, एंड थर्ड वन इज योर थर्मल मैनेजमेंट। एंड वन मोर पॉइंट इज दैट BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। वाई? VRLA अगर मैं बात करूँ, अगर मैं 5-6 साल 10 साल पहले की बात करूँ तो VRLA कंसीडर्ड टू बी अ डम डिवाइस। डम डिवाइस वाई? उसका क्या काम था? आप चार्ज करो, डिस्चार्ज करो, दैट्स इट, उससे ज़्यादा वो कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है? बट BMS को हम लिथियम आयन से जब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, यू कैन मॉनिटर and control value and parameter of each and every component of your batteries। आप सेल से रिलेटेड वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, ठीक है, टाइम लेवल पैक पे आप देख सकते हैं कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, क्या साइक्लिक लाइफ आपको मिल रही है, जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं दैट यू कैन मॉनिटर एंड कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ योर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, विच इज मेकिंग योर लिथियम आयन टेक्नोलॉजी अ वेरी रोबस्ट एंड वेरी मीन्स a very हाई साइक्लिक प्रोडक्ट जो आपको अच्छी साइकिल देता है, अच्छा एफिशिएंसी देता है, बिकॉज यू कैन कंट्रोल एंड मॉनिटर इट। तो BMS इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर अगर हम बेस्ट की बात करूँ। एंड थर्ड वन, लास्ट वन इज द EMS विच इज द एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। एनर्जी मैनेजमेंट क्या करता है? इट विल कंट्रोल कंप्लीट सिस्टम। कंप्लीट मीन्स बैटरी, थर्मल प्लस PCS, when you have to charge it, when you have to discharge it, वो सारी चीज़ें EMS के थ्रू, सॉफ्टवेयर लॉजिक के थ्रू यू कैन कंट्रोल। तो दीज आर द 4-5 मेजर कंपोनेंट्स। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन डेप्थ, वो हम कभी दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेजरली आपको देखना है इस 5 थिंग्स आर देयर: बैटरी, PCS, थर्मल मैनेजमेंट, BMS एंड EMS। So, Rahul, coming on to last question. Since our podcast is targeting fresh graduates and students who are who really want to excel in their storage system or who want to step down into this storage system environment, what according to you are the major skills that they should acquire so that they could get an entry into the energy storage field? Okay. So first, Abhishek, all the viewers, they need to understand the potential. Okay. As I told you that in India we have a potential of solar of almost 150 gigawatt. Potential is in the sense what we have deployed of, and government has a plan to have 500 gigawatt of solar installation by 2030. That's a government plan. Government have a lot of policies, framework, who is supporting all the developers, all the city boards to government is supporting them to install. So उनका plan is very big, like 500 gigawatt solar की बात करें, ठीक है? तो और विंड की भी ऐसे ही है सेम, ठीक है? तो अब आप ये देखिए, फर्स्ट यू हैव टू सी कि ये पोटेंशियल कितना है। 500 गीगावाट का सोलर है, अगर मैं ये मांग चलता हूँ 20%, जस्ट 20% अगर बेस्ट लगाते हैं, ठीक है, तो हाउ इट विल मैटर्स 100 गीगावाट तो आपको सोलर चाहिए, बेस्ट चाहिए फॉर द इंडियन मार्केट। अगर मैं अल्टीमेट गोल लेके समझता हूँ, ठीक है, ये मैं आपको अल्टीमेट गोइंग फॉरवर्ड वो बढ़ेगा ही, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि यस दिस इज समथिंग विच इज़ अ वेरी बूमिंग थिंग, ठीक है, इंडियन मार्केट एंड अक्रॉस ग्लोब, ठीक है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस। तो पहली चीज़ तो ये देखना है कि बेस्ट में आप कहाँ घुस सकते हैं, ठीक है। बेस्ट मैंने आपको बताया कि मैंने आपको 5 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया कि ये है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं सेल की बात करूँ, सेल में भी बड़ी सारी एक्सपर्टीज होते हैं, एनोड, कैथोड, उसका जो सेपरेटर्स होते हैं, ठीक है, सेल डिज़ाइन कैसे होता है, मॉड्यूल में उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है।
पीसीएस भी ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक बस मैंने बोल दिया बायडायरेक्शनल इन्वर्टर, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस थर्मली हाउ यू कैन मैनेज इट, ठीक है। उसके अलावा सर्विस इट्स नॉट एज सिंपल कि बस बैटरी आ गई आपने इंस्टॉल कर दिया। जब मैं मेगावाट स्केल की बात करता हूँ ना, तो यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सर्विस टीम who knows in and out about these things, cable losses, transmission, everything is required, transformer is required, ठीक है। आप कहाँ से कनेक्ट करोगे अपने ग्रिड में जाकर? सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि आपने पहले तो पावर सिस्टम समझना, और ये पावर सिस्टम में हाउ यू कैन इंटीग्रेट योर बेस्ट, ये समझना, ठीक है। जब आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, देन यू विल गेट द वे, यू विल एक्चुअली गेट द वे कि कैसे आपको कहाँ से पूछना है। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैं अपने व्यूअर्स से ये बता सकता हूँ कि इंडिया में बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स ऐसी हैं, ठीक है, विच आर ऑफरिंग अ वेरी डिसेंट कोर्स विद रिस्पेक्ट टू बेस, बहुत डिसेंट कोर्स दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ अभिषेक, तो हमारे टाइम पे एवरीबडी वाज फोकसिंग टुवर्ड्स दिस आईटी, तो हमारे अगर पुणे में और कुछ नोएडा में इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे, इफ़ यू रिमेंबर, जहाँ पे आफ्टर बीटेक यू कैन गो एंड यू कैन हैव नॉलेज अबाउट दोज एम्बेडेड सिस्टम एंड ऑल, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो जाती है, तो आपकी हायरिंग ईजी हो जाती है। तो सिमिलरली व्हाट यू हैव टू डू पैरेलल टू योर एजुकेशन, आप एक छोटा मोटा कोई कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। इन इंडिया लॉट ऑफ कंपनीज आर ऑफरिंग, ठीक है, जिसमें वो केस स्टडी भी डिस्कस करते हैं, हाउ यू कैन इंटीग्रेट, which will help you have a ground knowledge about this best, ठीक है। जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक ये अपना फुल टाइम अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं, और एक अपना करियर देख सकते हैं। आप सर्विस टीम में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, सेल्स में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, सप्लाई चेन में जा सकते हैं, ठीक है। यू हैव मल्टी टीम्स हु आर वर्किंग डे इन एंड डे आउट अबाउट दिस बेस्ट, ठीक है। तो आप किसी में भी जा सकते हैं बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट। अगर आपको टेक्नोलॉजी में है तो यू हैव टू स्टडी अबाउट दिस एनोड कैथोड, हाउ थिंग्स आर मूविंग। सो आई बिलीव कि ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, यू जस्ट हैव टू हैव अ गुड आइडिया, ठीक है। सो दैट इज आई थिंक मीन्स अगर आपको इंटरेस्ट है टू व्यूअर्स, यू कैन गो एंड एक्सेल दिस एंड वी कैन डिस्कस मोर अबाउट इट during in our further discussions. Yes, so to all the viewers, this is what the scope of BESS currently looks like. It's huge, it's humongous. I would like to thank Rahul for this extremely insightful session. Thank you for sharing such valuable knowledge about BESS and the future of the industry, Rahul. Thank you, Abhishek. Sure, thank you, Rahul. And to our listeners, if you have enjoyed this episode, please do share it with your colleagues, students, professionals interested in energy technology. We'll be back soon with another episode exploring innovation and technology shaping the future. Until then, stay curious and keep learning. Thank you. Thanks, Rahul. Thanks, Rod. Thank you.